sharing your screen. Okay. Namaskar, Parthasarathy ji, and hello to everyone who is watching this video of ours. So ये हमारा मुनाई की शैमनिज्म ट्रेडिशन जो हमारे 9 राइट्स है उसके ऊपर हमारा ये वीडियो सीरीज चल रहा है. दिस इज लाइक एन ऑनलाइन क्लास. ये ऑनलाइन क्लास के जैसे हैं. यहाँ पे मुनाइकी से कनेक्टेड हम लोग दूसरे बात भी करते हैं जो हमारे मैनुअल में है, जहाँ से मैंने दीक्षा लिया है, इनिशिएशन लिया है, राइट्स मैंने जिनसे लिया है. तो उनके जो मैनुअल्स है वो लोग डायरेक्ट इनकान सिविलाइजेशन से जुड़े हैं, एनडी से जुड़े हैं, एंड आई नो हाँ वेरी पर्सनली. तो उन्होंने जो मॉड्यूल ये किया है वो क्या है, अल्बर्टो विविल्डो जी का मॉड्यूल, जो मतलब न्यू एज में बहुत सारे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है मुनाई की शैमनिज्म के ऊपर. उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. और ये मैनुअल में अगर हम लोग देखें, एक्चुअली आज हम लोग बात करेंगे विजडम कीपर राइट के बारे में. लेकिन अगर हम लोग मैनुअल देखने को जाएं, लेट मी शेयर द मैनुअल विद यू. तो मैनुअल के हिसाब से आज हम लोग जो हैं वेदी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ कनेक्टेड टॉपिक्स है जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो यस, अभी हम जाएंगे. तो आपने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग शुरू किया है क्या? हाँ, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. हाँ मैंने कर दिया. सो टुडे ठीक है, हम वेरी गुड. आज हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि वेदी क्या है. लास्ट टाइम हम लोगों ने डे कीपर्स राइट के बारे में बात किया. मैं सबसे पहले तो इंग्लिश में बोलूंगी. फर्स्ट आई विल टेल इन इंग्लिश, देन आई विल स्पीक इन हिंदी. सो this is one of the topics, why we build altars, which is in the manual of monarchy rights. So we are not going to avoid these topics because this is very important. And I know my mentor very personally, and she is directly from the Incan civilization. Her ancestry belongs to there, and she is following a module of Mr. Alberto Vivaldo. I'm very sorry if I am pronouncing the title wrongly, but anyway, he is a person, he is a new age person who has contributed a lot to the monarchy rights. And so his manual is like #1 manual and module in the world right now regarding shamanism or monarchy or other Mustakarpe rights. So in that manual, there are a quote of altars. So as you can see already, why we build altars. Okay, so what is altar? Different people build altars for different reasons. So some people build altar for their own practices, religious or spiritual practices. Some people use their altars for ancestors, or in India, it is very common that many people use altars for friends also. And this is also an example of altar creation, Partha, where we can very commonly can see that in our office places. I mean, on a wall or on a table at a corner, we often see that people keep their photos of their spouse, and the children or their parents. So this is also a form of altar. So many people do not know consciously, maybe till now, that this is also a form of altar. So why we build altars? Okay. I think it's unstable. Anyway, so some people build altars to support them in आप कर building a सकते हैं new तो life. आप कर सकते. Any problem? शायद आप देख सकते हैं क्योंकि कट हो रहा है काफी. Okay, fine. So I अभी am. वीडियो स्ट्रीमिंग अगर स्टॉप करेंगे तो Yeah. क्वालिटी विल बी बेटर. I will do that. Let me do that. But so many people build altars for their own purposes. Stop video. Yeah, I stopped the video now, I think. ओके. ओके.
So there are many reasons, different reasons why people build altars. Some people use altars as center points for meditation or ritual, as I already said. Other people build altars which are artistic or activist in nature. In some cults also, people use altars. So as I said, um, for memorial, people can use for respect for their elders or ancestors, they can use. And in shamanism especially, people build altars to celebrate and connect with Mother Gaia, or to Mother Earth, or Pachamama. And who is Pachamama will cover this in the later section of the video if time permits us. So अभी मैं हिंदी में बोलूंगी कि हम लोग वेदी क्यों बनाते हैं. तो डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग अलग अलग उद्देश्य से वेदी बनाते हैं. वेदी जो बोलते हैं, मंदिर भी बोलते हैं. सिंपली हम यहाँ पे मंदिर बोलते हैं, बट एक्चुअली वो वेदी होता है. तो बहुत सारे लोग इंडिया में देखा जाता है कि एंसेस्टर्स जो होते हैं, शायद आपने भी ये नोटिस किया है कि एंसेस्टर्स के लिए जो वेदी है वो अलग होते हैं, और खास करके उत्तर के दिशा में होते हैं. एंड दोस्तों को याद करने के लिए भी दोस्तों के फोटो रख के एक कोने में या एक स्टूल में रख दिया, एक वॉल में रख दिया, वो भी एक टाइप का ऑल्टर है. लोगों को पता नहीं है कि कॉन्शियसली के वो ऑल्टर यूज कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी एक ऑल्टर है. तो खास करके एंसेस्टर्स के लिए भी डिफरेंट ऑल्टर यूज किया जाता है. नॉर्मली करना जरूरी है, और नॉर्मल पूजा रूम के लिए भी ऑल्टर यूज किया जाता है, पूजा के लिए, रिचुअल के लिए, और मेडिटेशन के लिए भी दूसरा टाइप का ऑल्टर यूज किया जाता है, जहाँ पे क्रिस्टल्स वगैरह रखते हैं. तो ये है ऑल्टर. और एक बात मैंने नोटिस किया है कि इंडिया में भी, आई मीन अराउंड ऑल द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ही लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में भी एक कोने में अपने स्पाउस के फोटो रख दिया, अपने बच्चे के फोटो रख दिया, अपने घर के परिवार के लोगों का फोटो रख दिया. वो भी एक टाइप का ऑल्टर ही होता है, जो एक मतलब स्पेशल टाइप का ट्रिब्यूट और सम्मान देने के लिए आप कोई भी मेमोरियल मेमेंटो फोटो यूज करके आप वही जगह हमेशा यूज करते हो, एंड उस जगह का एनर्जी भी क्लेंस करते हो, तो वही हो जाता है ऑल्टर. और खास करके शैमनिज्म में मदर गाया के साथ, पचामामा के साथ, मतलब मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए ऑल्टर्स यूज किए जाते हैं. तो वो है मेन चीज आज का. तो जितने भी रिचुअल्स मैंने बताए, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप यूट्यूब में भी ढूंढे, गूगल में भी ढूंढे, तो आपको ऑल्टर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. तो बढ़िया टाइम में अजान भी हो रहा है, तो आई थिंक वी आर इन द सिंक. सो सम ऑल्टर्स आर Yeah, very मेंट nice. टू, या वेरी नाइस. एक्चुअली रुकना चाहिए, मैं थोड़ा 10 सेकंड रुक जाती हूँ. तो अच्छा लगता है. तो मैं फिर से और एक दिन, एक्चुअली अजान का साउंड आया था शायद, तो मैं फिर से एक बार बता दूं. अभी अकॉर्डिंग टू लाइट लैंग्वेज, अल्लाह वर्ड, अल्लाह, अल मतलब माँ, और ला मतलब बाबा, मतलब उसमें भी मदर एंड डिवाइन फादर का जिक्र है. So some altars are meant to last the length of a ritual or holiday reason, while others are with us for years. An altar is not merely a construct on a high square flat table. Some altars are small and fit into a wardrobes. मतलब कुछ ऑल्टर्स जो होता है टेम्पररी टाइम पीरियड्स के लिए होता है. मान लो कि एक मेडिटेशन रिजॉर्ट हो रहा है, मेडिटेशन रिट्रीट हो रहा है, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, तो उस टाइम के लिए किया जाता है, हॉलीडे सीजन के लिए किया जाता है. और काफी ऑल्टर्स तो काफी वेदी जो होते हैं काफी पुराने होते हैं. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आफ्टर द एंड ऑफ आवर वीडियो टुडे, मतलब सॉरी, बिफोर द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, आप अबू सिंबल का भी दिखाए, जो मतलब इतना एक बड़ा एक ऑल्टर ही बोल सकते हैं. तो डेफिनेटली दिस इज अ मंदिर, टेम्पल है, बट अल्टीमेटली Sure. बहुत सारे ऐसे पुराने जो मंदिर है ना, वो सारे एक्चुअली वेदी ही होते हैं, बड़े एक वेदी होते हैं जिसके अंदर इंसान भी घुस सकता है. हमारे बड़े बड़े बहुत Yeah. सारे मंदिर भी, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि वो भी एक ऑल्टर मतलब वेदी ही हो. डेफिनेटली वो बड़ा वेदी है, उसके ऊपर चारों ओर वॉल्स लगा दिए गए थे पहले, ताकि स्टॉर्म्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म ना आए, कोई भी प्राकृतिक दुर्योग उसको हानि ना पहुंचा सके. तो अल्टीमेटली वो मंदिर बन गया, बट अल्टीमेटली वो बेसिकली इट्स एन ऑल्टर ऑल्सो.
तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इंडोर ऑल्टर भी होता है, आउटडोर ऑल्टर भी होता है। कभी कभी हमारे इंडिया में तो बहुत दिखने को मिलते हैं कि सम आर इन टेम्पल्स एंड सम आर इन ट्रीज। देयर आर मेनी ऑल्टर्स इन आर ट्रीज। यू कैन सी द banyan tree, I think that is पीपल का पेड़, where many altars are there, we can see बरगद का पेड़ होता है, वहां पे ही हम लोगों का ऑल्टर होता है। मतलब इंडिया में एक अच्छा लगता है मुझे कि हर चीज को पूजा जाता है, जो मुझे बहुत पसंद है। Yeah. मंदिर के Yes. सामने का पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे आपको बहुत सारे ऐसे वेदियां मिल जाएंगी, वो भी वेदी है। मतलब पुराने गणपति का Yeah. मूर्ति रखा है, फेंकते नहीं, इंडिया में कुछ भी चीज फेंकते नहीं है। कभी कभी वो True. खराब भी होता है, बट अभी जिनको मैं मानती हूँ, पूजती हूँ, उनके बारे में क्या बोलूं। तो लोग फेंक नहीं सकते। नया गणपति का मूर्ति आ गया तो पुराना कहाँ क्या कहाँ रखेगा, बिल्कुल बाहर के बरगद के पेड़ के नीचे ही रखेंगे, उनको भी पूजा किया जाता है। तो इंडियन पीपल ऐसे मतलब यू नो पूजा करके, रिस्पेक्ट दे के, ट्रिब्यूट दे के उनको अच्छा लगता है। अब पता नहीं मैं इंडियन लोगों की बात कर रही हूँ या अपनी बात कर रही हूँ। सो जोक्स अपार्ट, सम ऑल्टर्स आर सो लार्ज दैट वी कैन स्टैंड विद इन देम। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो एक्चुअली वेदी है और जिसके अंदर इंसान भी घुस सकते हैं। तो वो धीरे 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 मंदिर बनता गया, बट वो अल्टीमेटली एक ऑल्टर ही है। तो दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ये वेदी क्या है और शैमनिज्म में इनका इंपॉर्टेंस क्या है। शैमनिज्म में मेन इंपॉर्टेंस ये है कि गाया, मदर गाया के साथ कनेक्ट करने के लिए ऑल्टर्स यूज किए जाते थे। कहाँ पे? इनकान सिविलाइजेशन में। कहाँ पे? एंडिस माउंटेन्स में। Okay, so a wealth of possibility and purpose. So, what are the purpose behind an altar? When you build your altar, let your mind open up to the possibilities it offers. I mean to say that you need to surrender, and you need to let all possibilities come through the channel of your mind while you are building an altar. Your altar can be just a few pieces on a window ledge and even simple stone on your desk, or it can take up a large space in your home or backyard. It's up to you. But the significance of altar, it doesn't lie on the size of an altar. It is your intention for which purpose you are making. मतलब altar बड़ा हो या छोटा हो मतलब नहीं है। आपने खिड़की के साइड में ही जहाँ पे अच्छा ची मतलब शक्ति का मतलब आवो हवा मतलब हवा, 5 एलिमेंट का अच्छे से आना जाना होता है, वहां पे ची जो शक्ति बोलते हैं, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। और वहां पे आपने क्रिस्टल रखा है, थोड़ा सा पानी रखा है। वैसे मेरे घर में तो हर कोने कोने में वेदी ही वेदी मिलेंगे, ऑल्टर्स मिलेंगे। दैट्स अ डिफरेंट मैटर बिकॉज आई एम अ हिलर। तो मेरे तो घर कोने कोने में अलग अलग ऑल्टर्स होंगे। तो वो भी मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है। ओके, तो आपका इंटेंशन एक्चुअली क्या होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट सबसे जरूरी है कि ये जो न्यूमरस पॉसिबिलिटीज है, अनंत संभावनाएं जो है, उनको आपके चेतना के जो चैनल है वहां पे आने दीजिए और अलाउ करने दीजिए डिवाइन को, के डिवाइन आपको हेल्प कर सके। मतलब बिल्कुल सरेंडर करके, लेट गो करके आप सिंक में आ जाओ, ताकि आपको जो जो नई नई चीजें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ब्लेसिंग्स है, वो आ सके। ठीक है, तो ये आपके पर्पस के ऊपर है, इंटेंशन के ऊपर है और आपके एम के ऊपर है कि ऑल्टर्स आप कैसे बनाते हो। Once you know that, you can take it from there. Building altars can be sacred, spiritual, emotional, creative, or philosophical process depending on your need and intent. For example, during the celebration of Independence Day or Republic Day in India, you can see an altar where you can see Mahatma Gandhi in one side, and in the middle, most possibly, you will see Bharat Mata. तो इंडिया के रिप्रेजेंट सॉरी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में वही ऐसे ही ऑल्टर्स दिखने को मिलेंगे एज पर द पर्पस। जैसे कि वो एक फिलोसॉफिकल पर्पस या फिर नेशनलिस्टिक फीलिंग हो गया। साइड में भारत माता का, सेंटर में भारत माता का पिक्चर मिलेगा, साइड में महात्मा गांधी दिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे। तो इमोशनल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं, क्रिएटिव भी हो सकते हैं। लाइक भारतनाट्यम जो डांस करते हैं, उनके भी एक ऑल्टर होते हैं। वो लोग
दिया जलाते हैं. They will the Bharatnatyam dancers or any kind of classical Shastriya dancers, they use an altar to lit lamps before starting their performance. So it could be creative also, but it is very important to notice one thing, that in shamanism there should be and there must be an altar primarily to connect with the energies of Mother Earth, Mother Gaia, or Pachamama. So now we'll discuss about Pachamama. Who is Pachamama? So are you there? I think you can hear my voice. नहीं, विजडम कीपर्स हमको डिस्कस करना था ना. Yeah, but Or you ठीक है, want? fine. We'll later words we'll discuss about Pachamama. Actually, it Okay, is fine. extra module, yeah. So okay, fine. Now we will discuss wisdom keepers, right? Then we'll discuss Pachamama because I'm Yeah, pronouncing the word. Yeah, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो काफी वो- लोगों को इंडिया में पचामामा समझ में नहीं आएगा. एक्चुअली वो प्रकृति माँ ही है, तो हम उनके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे. So now we yeah. will discuss about wisdom keeper right, which is right number 6, and there another 2 rights. After that, the Munaiki rights video will be ended. Our season will conclude after that. So the Yeah. 6th is the wisdom keeper rights. The legends say that the ancient wisdom right resides in the high mountains. The ice-covered peaks were revered as places of power, just as other mountains around the world. So बोला जाता है कि विजडम कीपर राइट जो ये छठा एक्चुअली मुनाइकी राइट्स का है. उसके बाद और 2 राइट्स हैं. उसके बाद हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएंगी. लीजेंड्स के हिसाब से, एज पर द शैमनिक लीजेंड्स, बोलते हैं कि जितने भी हायर नॉलेज है ना, ज्ञान है, ये हाईएस्ट ऑक्टेव्स में रहते हैं, लाइक माउंटेन्स में रहते हैं, जहाँ पे मतलब लेस पोल्यूशन होता है, लोगों का आना जाना कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है. दिस इज कॉमन सेंस, सिंपल है. तो वहां पे जो आइस से मतलब क्या बोलते हैं, बर्फ से भरे जो माउंटेन पीक्स होते हैं, वहां पे बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर्स रहते हैं, तो उन जगहों को भी पूजा जाता है. लाइक हमारे यहाँ पे भी आप अमरनाथ, सॉरी, हमारे ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत जो केदारनाथ के हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत मतलब हिमालय में है ये ज्योतिर्लिंग जो है. तो जितने भी हाई इसमें रहेंगे उतने ही बोला जाता है कि डिवाइन है, जितने भी ऊंचे जगह में रहते हैं. तो राइट बोलते हैं कि the lineage of wisdom keepers are medicine men and women from the past who defeated death and stepped outside of time. The job of the wisdom keeper is to protect the medicine teachings and share them with others and appropriate. This right helps you to step outside of time and taste infinity. This right also connects you to the lineage of luminous beings from the past and the future. This right helps you to begin to heal your inner masculine, step outside of time, become stepped in the medicine teachings and taste infinity. तो हिंदी में बोले तो विजडम कीपर्स राइट मतलब आप लोग इसको ज्ञान रक्षक राइट भी बोल सकते हो. ये एक्चुअली मेडिसिन मैन बोले तो हम क्या बोले अभी हिंदी में, इसका मुझे अर्थ नहीं आ रहा है, बट एनीवे जो मतलब हर्बलिज्म का प्रैक्टिस करते हैं, ओझा भी बोल सकते हो, वैद्य भी बोल सकते हो, जिन्होंने अपने मेडिसिन के पावर से मतलब अपने जो नेचुरल मेडिसिन है, हर्बल जो मेडिसिन है, या फिर उनकी जो दैविक शक्तियां हैं, जो नेचर मतलब प्रकृति से पाए गए चीजों से मतलब औषधियों द्वारा उन लोगों ने मृत्यु तक को भी काबू में किया था. एंड उन लोगों को टाइम ट्रेवल भी करना आता है. आउटसाइड ऑफ टाइम बोले तो टाइम के परे हैं वो लोग, बियॉन्ड टाइम है. तो उन लोगों के लाइनेज से कनेक्ट करने की आपको शक्ति मिल जाती है. और ये विजडम कीपर क्यों है, ये जो लोग ये अभी भी है, उनके आत्मा उनकी शक्ति अभी भी है. और जो विजडम कीपर्स राइट को लेते हैं
विजडम कीपर्स क्या करते हैं, मेडिसिन टीचिंग, ये जितने भी औषधीय ज्ञान है उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं एंड उचित लोगों को वो दान में देते हैं। उचित लोग मतलब जो दीक्षा लेता है, और ये आपको जो लेता है उसको उनको बियॉन्ड टाइम, समय के भी परे जाने की शक्ति देते हैं, और असीमत्व का भी वो आपको स्वाद दिलाएगा। और ये क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि पास्ट से रिलेटेड जितने भी ल्यूमिनस बीइंग्स, सिंपल बोले तो हम समझ सकते हैं कि एंजल्स, बट यहाँ पे सिर्फ एंजल्स नहीं है, हमारे पास्ट के, हमारे पूर्वजों के भी जो मेडिसिन टीचर्स थे, जो हर्बलिस्ट थे, जो हीलर्स थे बड़े बड़े, एंड लाइक एंजल्स भी थे, उनके साथ, उनके लाइनिएज के साथ, वंश के स्रोत के साथ आपको कनेक्ट कराता है। और सिर्फ पास्ट के ही नहीं, जैसे मैंने बताया था, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी, ये बहुत मायने करने वाली बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि as they act beyond time, they also connects to the future perspective. So this right helps you to begin to heal your inner masculine. आपके अंदर का जो स्त्री शक्ति है, सॉरी, आपके अंदर का जो पवित्र पुरुष शक्ति है, उसको हील करने में हेल्प करती है, आपको समय के परे जाने में हेल्प करती है। और आप सारे मेडिसिन टीचिंग जितने भी प्रकृति से कनेक्टेड औषधीय आपके ज्ञान है, और साथ में असीमत्व की स्वाद चखने के क्षमता आपको मिल जाते हैं। सो विजडम कीपर, number 1, keepers of the holy mountains. Number 2, establishes a connection with the male energies and heals the masculine. Main point. Number 3, learn how to step out of the ordinary time. Number 4, heal wounds of the past, which is very important. It's like healing of your shadow self, healing of your inner child, healing of your past. It is very essential to go to the next level in connection to ascension. Number 5, our job as a wisdom keeper is to protect wisdom keepers and to share wisdom and appropriate. Number 6, learn to speak the language of the upper world. Number 7, we source from masculine mountains, Olympus, Fuji, the Himalayas, where we meet God. Number 8, we must receive our day keeper's rights before the wisdom keeper rights to keep us grounded. सी, यहाँ पे मेन पॉइंट्स बोला जा रहा है, ऊपर में जो है वही नीचे बोला जा रहा है कि विजडम कीपर क्या है, क्या करते हैं, ये करने से क्या होता है, राइट्स लेने से, दीक्षा लेने से। नंबर 1, विजडम कीपर्स हैं होली माउंटेन्स, जितने भी पवित्र पहाड़ है, पर्वत है, उनके रक्षा करता है। ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करता है, हील करता है, एंड टाइम से परे, समय से परे कहते हैं, जाके कोई भी काम करना है, रिजॉल्व करना है सिचुएशन, ये सिखाता है। पास्ट के जितने भी चोट है, वुंड्स है, आघात है, क्षत है, उनको हील करते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे शैडो सेल्फ हीलिंग करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। देखिए, एसेंशन के यात्रा में, एसेंशन बोले तो आध्यात्मिक उद्गति के यात्रा में, जब आप एक स्तर दर एक स्तर आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपके जितने भी पास्ट के इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। फेस करके, वर्कआउट करके, मतलब पहले एक्सेप्ट करना है, फिर वर्कआउट करना है, फिर हील करना है, फिर रिलीज करके आगे बढ़ना है। तो ये आप में वो शक्ति ला देता है विजडम कीपर राइट। नंबर 5, मेन काम है विजडम कीपर्स का कि वो मेडिसिन नॉलेज को प्रोटेक्ट करे, ज्ञान को, उस ज्ञान को प्रोटेक्ट करे, एंड उचित और जो वर्दी लोग हैं उनको, मतलब जो सक्षम और जो योग्य लोग हैं, जिनको दीक्षा मिल चुका है, उनको वो नॉलेज प्रदान करे, शेयर करे। नंबर 6 है अपर वर्ल्ड। डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं अभी अपर वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि जितने भी पहाड़ के बारे में बात किया जा रहा है, अपर वर्ल्ड जहाँ पे मतलब डिविनिटी है, ज्यादा पवित्र शक्तियां हैं, आपको उस ऊंचे अपर वर्ल्ड बोले तो ऊंची दुनिया, हेवन भी बोल सकते हो, तो वहां की भाषा आपको समझ में आ जाएंगी, और वो कोई लिटरेरी भाषा नहीं है, ठीक है।
वो अक्षरिक भाषा नहीं है, वो अलग चीज है। जो एक आत्मा का भाषा होता है वो आपको समझ में आ जाएंगे, समझ आने लगेंगे। 7 नंबर, सारे पहाड़ों की बारे में बात की जा रही है। ओलिम्पस हो, फूजी हो, हिमालयस हो, एंडीज हो, जहाँ पे आप भगवान को मिल सकते हैं, तो वो शक्ति आप में आ जाती है, क्योंकि उस लाइनेज के साथ ही आपको एनर्जेटिकली कनेक्ट किया जाता है। नंबर 8, we must receive our day keeper rights before the wisdom keepers right to keep us grounded। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है कि विजडम कीपर राइट की ये जो एनर्जी है वो हाईएस्ट ऑक्टेव्स की बात करते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, हेवनली एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दीक्षा लेने से पूर्व आपको एज पर मॉड्यूल जो है आपको डे कीपर्स राइट में दीक्षा लेना ही पड़ेगा ग्राउंडेड रहने के लिए, ताकि जब आप हायर धरती की शक्ति आप प्राप्त करें तो आप क्या बोलते हैं, एक डगमगा ना जाए, आप जमीन पे फॉर्मली खड़े रह सके। तो इसीलिए बोला जाता है कि मॉड्यूल को फॉलो करें और एज पर मॉड्यूल ही दीक्षा ले। अभी एक्चुअली बीच में ही आ जाते हैं पचामामा की बात, बट हम वो थोड़ा पीछे छोड़ के, क्योंकि हम लोग विजडम कीपर की बात करते हैं, तो हम ये करेंगे कि विजडम कीपर की राइट ये जो एक शिष्य लेंगे, तो शिष्य क्या करेंगे, क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल पे है। राइट 6, विजडम कीपर टू रिसीव इन दिस ट्रेनिंग, व्हाट टू डू। A student, this is for student, what here a student will do while he is receiving the training or the initiation for or the transmission for wisdom keepers right from his guru. Number 1, open sacred space and sit quietly in meditation. Number 2, place your hands on your shoulders to balance the feminine and masculine energies. Number 3, hold until you feel it is time to move to next position. Number 4, place your pi stone on your crown chakra. Draw 3 deep breaths from the universe. Throw the pi stone and into your crown chakra with the pi stone in place. Feel the energy pouring down the core. Keep drawing in the Munaiki energy. Meditate the intent to anchor the right. Meditate the intent to imprint the right. Number 5, bring your hands back to your shoulders, grounding, then centering, then feeling the energy build. Number 6, now we will attune the second, fourth, and sixth chakras while sourcing the divine wisdom. Keep your energy above. Place your hands on the heart chakra. Right hand will be on the above left hand. Number 7, stay anchored. Take your right hand from your heart to your solar plexus. When ready, bring the right hand back on your heart chakra. Leave your right hand. I think my connection is not stable. Anyway, I'll tell again. Leave your right hand at your heart chakra and anchor the wisdom keeper's right pulse into your heart chakra. You have to feel it. Take your right hand from your heart chakra to your third eye. Feel into your third eye center. You have to feel it. Number 8, draw your left hand up to form a cup with your right hand, opening and sealing your third eye chakra. Transmission begins. Feel the energy build. While I am saying, or this module is saying, feel, 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 it is very important, because while you feel, you work in the fifth dimension or in a higher dimension, which is real. So you have to feel. What you feel, this is true. Number 9, go to the source for this right. Dream the wisdom keeper's light. Here, 4 points are very essential. Number 1, be patient. Wait for the energy to build up. Number 2, set the intention to transmit. Number 3, set the intention to receive the energy from the Great Spirit. Number 4, feel the energetic pulse filling your being, pouring through your third eye chakra. Number 10, step. The wisdom keeper's attunement must go deep. Take your time. Number 11, when complete, move your hands back your heart chakra, hold until ready to close sacred space. तो ये था, जब भी एक शिष्य लेगा ट्रेनिंग तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले वो ओपन सेक्रेट स्पेस करेगा, शांति से मेडिटेशन में बैठेगा। उसके बाद
अपने दोनों ही हाथों को ऐसे शोल्डर्स पे रखिएगा ताकि उसका फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज ग्राउंड हो सके, बैलेंस हो सके। पाई स्टोन को अपने क्राउन चक्रा पे रखेगा और 3 लंबा लंबा सांस यूनिवर्स से खींचेगा पाई स्टोन के थ्रू में अपने क्राउन चक्रा में। with the pi stone in place, feel the energy pouring down, मतलब जो मुनाई की एनर्जी आ रही है उसको फील करना है, ध्यान करना है, इंटेंट करना है, एंकोर करना है राइट को। और एक बात है कि मुनाई की एनर्जी को फील करना है, देन एंकोर करना है अपने राइट को, देन मेडिटेट करना है अपने इंटेंट पे ताकि राइट इम्प्रिंट हो जाए। अभी इसका पूरा मैं आप लोगों को जो है हिंदी में एकदम बता नहीं सकती वर्ड, आप समझ जाओ। इम्प्रिंट मतलब पूरा आपके सेल्स में आ जाएगा। एंकोर मतलब आपको ग्राउंड होके धरती को पकड़ना है, ठीक है, राइट के लिए, ताकि अच्छे से आ पाए, आप डगमगा ना जाए। 5 नंबर स्टेप में क्या करना है, अपने हैंड्स को फिर से शोल्डर्स में लाना है ग्राउंडिंग के लिए, सेंटरिंग के लिए। एनर्जी को फील करो आप। छठा इसमें आपका सेकंड, फोर्थ एंड छठा चक्र में आपको मतलब फील करना है और एट्यून करना है। तो अपने हाथ जो है आप हार्ट चक्र में दीजिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर रहेगा। इफ यू आर मतलब आप अगर राइट हैंडेड पर्सन है तब आपका रिसीविंग वाला हैंड हो जाएगा लेफ्ट, तभी आप लेफ्ट हैंड को पहले हार्ट में रखें और राइट हैंड को उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें। अगर आप लेफ्ट हैंडी पर्सन है तभी उल्टा होगा, तब आपका रिसीविंग हैंड होगा ये राइट वाला, तो राइट वाला तब आप हार्ट में रखें, लेफ्ट वाला उसके ऊपर रखें। तो एकदम कॉमन सेंस है, हम फिर से मैं रिपीट करती हूँ आपकी सुविधा के लिए। 7 स्टेप है कि स्टे एंकर्ड, एंकर्ड रहिए मतलब ग्राउंडेड रहिए, अपना जो रूट है वो मत भूलिए। टेक योर राइट हैंड, आपका सोलर प्लेक्सस से आपको राइट मतलब क्या बोलते हैं कि आपका राइट वाला हैंड जो है वो आपके सोलर प्लेक्सस पे लेके जाइए, और जब भी आप रेडी हो तो फिर से राइट वाला जो हैंड है वो आप अपने हार्ट चक्रा पे लाइए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पे रहने दें और बिल्कुल फील करें कि विजडम कीपर्स का डिवाइन पाल सबके हार्ट में बज रहा है। इसको आपको फील करना होगा। अभी हमारे यहाँ पे थंडर स्टॉर्म भी हो रहा है, शायद थोड़ा कनेक्टिविटी कम भी हो सकता है, तो मैं जल्दी खत्म करती हूँ। फिर आप राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा में लाइए, हार्ट चक्रा से उठा के आप थर्ड आई में लाइए और फिर थर्ड आई सेंटर को फील कीजिए जैसे कि हार्ट में फील किया था, जैसे कि विजडम कीपर्स के राइट को आप फील कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम में जब आप ये करोगे एज अ शिष्य के तहत, शिष्य गुरु आपके सामने होगा, तो वो ट्रांसमिशन करता रहेगा, आपको रिसीव करना है, फील करना है, और जब जब जहां जहां हाथ करना है वो सब करना है। सो 8 नंबर स्टेप में आपके लेफ्ट हैंड को कप करना है आपके राइट हैंड के साथ, ऐसे ओपनिंग और सीलिंग करके थर्ड आई पे, और ट्रांसमिशन तभी बिगिन होगा। फिर से एनर्जी को फील करना है। एंड 9वां जो स्टेप है उसके लिए आपको सोर्स पे जाना है, आपको फील करना है। सोर्स मतलब आप समझ लो, आप भगवान को मानते हो, पचा मामा को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, या मुनाई की एनर्जी को मानते हो, तो उस सोर्स पे जाके आपको फील करना है और फील करना है कि विजडम की पास का जो लाइट है, जो किरण है, प्रभा है, आभा मंडल है, पूरा प्रकाशित हो रहा है और आप उसमें अच्छे से प्रकाशित हो रहे हो। तो ये जो पूरा काम है, इसके लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शांति से काम करें, धैर्य से काम करें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बिल्ड अप होना है। इंटेंशन करें कि ट्रांसमिशन आप ले रहे हो, इंटेंशन करें कि आप रिसीव कर रहे हो ग्रेट स्पिरिट से, जो सबसे शक्तिशाली स्पिरिट है, सोर्स है, उनसे ले रहे हो, और पुराने पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के जितने भी विजडम कीपर्स है उस स्रोत से, सोर्स से आप ले रहे हो। और फील करें कि पूरे एनर्जेटिक पल्स जो है आपके बिल्कुल थर्ड आई में बह रहा है और पूरा आपका शरीर में, पूरे बीइंग में, आपके पूरे अस्तित्व में बह रहा है। नंबर 10 स्टेप है विजन कीपर्स अटूनमेंट मस्ट गो डीप, टेक योर टाइम, समय लेना है। अभी जैसे मैं जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ,
ऐसा नहीं है, ये बस एक मॉड्यूल है। उसके लिए आप 1 से 1.5 घंटा 4 घंटा भी ले सकते हो। 11 नंबर स्टेप है, जब कंप्लीट होगा फिर से हाथ अपने हार्ट चक्रा पे लेके आइए। जब तक आपको फील ना हो कि आप रेडी हो, वहां पे रहिए आराम से, मतलब फील कीजिए एकदम। 12वां स्टेप जो है वो है क्लोज सेक्रेट स्पेस। सो now we will come to the point, wisdom keepers right to give to others. This is very similar to the former procedure, but this is like what will the guru do to his shishya, or what will the mentor do to his student. Same thing but different perspective. So same, you have to open sacred space from back and place your hands on person's shoulders to balance the feminine and masculine energy. Hold until you feel it time to move to the next position. You have to, number 4, you have to place 5 on their crown chakra, on your student's crown chakra. 3 blows into their crown chakra with the 5 in place. Feel the energy go down to the 4. हाँ, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है सडनली। कैन यू जस्ट चेक योर वॉल्यूम? वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है। Good only, but there is thunderstorm outside. Maybe that's why. अच्छा, बहुत लो वॉल्यूम में आ रहा है। Now, is it okay now? Hello? Can you नो hear? मतलब आ रहा है, आवाज आ रहा है, लेकिन बहुत लो वॉल्यूम है। So I will speak little louder. Okay. So you have to, या as a guru or as a mentor, you have to go 3 times into their crown chakra. I mean, the student's crown chakra with a 5 in place. Feel the energy go down the core. Blow Munaiki energy. Blow with the intent to anchor the right. Blow with the intent to imprint the right. Number 5, place your hands on the person's shoulders, grounding. For grounding and centering, feeling the energy build. Number 6, move to the front of the person and assume the second, fourth, sixth chakra while facing from above. Place your hand on the heart chakra, right hand on the left hand. Number 7, face strategy. Take your right hand from your heart to the solar plexus of the trapezius. Put your right hand back on your heart chakra. Take your right hand from your heart chakra to the heart of your trapezius. Put your right hand back on your heart chakra. Take your right hand from your heart chakra to the third eye of your trapezius. Number 8, transmission begins. Now bring your forehead to forehead of the trapezius. Number 9, transfer the right by going forehead to forehead. 5 things are important. Go to the source for this right, wait for the energy to build up, set the intention to translate, set the intention to receive the energy from spirit to person, feel the translation following into the recipient. Number 10, the wisdom keeper's attunement must go deep, take your time. 11, when complete, move your hands back to your heart chakra, hold until ready to close. Number 12, close the space. Same position, same thing, just one is for the guru or the teacher or who will initiate, and the other is for the student or who will, the initiate or the prophet. So we have concluded wisdom keepers right today. Partha, can you tell me the time? It's 8:30 now. No, 8:30. Hello? I can't hear you. Hello? Maybe maybe we can stop recording for a second, okay? And we will discuss about Pachamama in the next video. And this is, we have concluded the wisdom keepers right. That is 6 Munaiki rights. So there are 2 rights left. So our video concluded here, but we'll make another video about Pachamama right after this video. Yeah. Thank you. Yeah, sure. Hello? Not able to hear.
एक्चुअली लास्ट 15 मिनट्स वेरी लो वॉल्यूम एंड बहुत सारा सेंटेंसेस कट भी हो गया. We don't know. We will upload. Let's see. Yeah. Okay. But I think मैंने Maybe. शुरू का जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो वहाँ पे ही सारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पिछले वाला पार्ट है जो कंप्लीट कर दिया मैंने, तो इसको मैं हिंदी में कंप्लीट कर दिया. Okay. सेम नहीं है, एक में पिछले करेंगे, एक में गुरु करेंगे. So let's end it here now and Yeah. make another video on Pata Mama. Yeah. Yeah. Sure. So I am pausing the recording, stopping the recording.